Dear students, today we will discuss about the remaining parts of this chapter, means the remaining parts of the topic about the Japan, means about the Meiji restoration we have to discuss in this video. So first we will start the new government and also the how emperor was treated and what was the title of that leaders and how they thought about them. So new government also tried to build the emperor system, that is means emperor system के भीतर में king, bureaucracy and military part of the system, ये तीनों था. king को, bureaucracy को, military system को importance दिया गया था. Emperor was treated as the descendant of sun goddess and leader of westernization. Okay, and his birthday means emperor's birthday was declared as national holiday. He wore western style military uniforms. Under the Meiji reforms, what was the educational reforms was done? See, means one of the most backbone reforms of the society was and is also now education. So literacy system means how the literacy system was reformed by the emperor during the period of the Meiji reforms. So universal and compulsory education system for boys and girls began to be implemented from 1870s. यहाँ पे यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन दोनों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया था 1870 में जापान में. एंड द करिकुलम हैड बीन बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियाज बट एम्फासाइज वाज गिवन ऑन द स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री. यहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर में वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर में इंपॉर्टेंस एम्फासाइज देने के बाद भी जापान का हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मतलब वो स्टडी जो है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था. इसको बिल्कुल इरेडिकेट रूट आउट नहीं कर दिया गया था. So the Ministry of Education controlled the curriculum, selected textbooks and conducted teachers training. So that's why the education, if the education system will be changed, so total system means the training of the teachers and also the selected textbooks, everything means curriculum also controlled by the Ministry of the Education. मतलब पूरा total system को change किया गया था educational reforms के लिए. Moral culture had to be taught. Textbooks taught the children to respect their parents, be loyal to the nation and become good citizens. इनका बुक में ये सब था. मतलब रेस्पेक्ट पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना, एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना, लॉयल मतलब नेशन के प्रति जो हमारा जो अफेक्शन जो है फीलिंग्स जो है उसको इसके ऊपर में एंड बीइंग ए गुड सिटीजन. ये था हमारा एजुकेशन रिफॉर्म्स में. देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या हुआ था? Now the Meiji government introduced a new administrative system by alerting old village and domain boundaries. ओके मेजी गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाया था. देखो, ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज टू हैव सफिशिएंट रेवेन्यू. जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया मतलब फॉर द मींस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री मींस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको बोला जाता है. तो वहां इसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज टू हैव सफिशिएंट रेवेन्यू टू मेंटेन द लोकल स्कूल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज. मतलब सफिशिएंट अमाउंट रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था. मतलब सफिशिएंट रेवेन्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इसको था जो कि हमारा लोकल स्कूल एंड हेल्थ फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसको यूज किया जाता था दैट मनी. एंड इट आल्सो सर्व्ड एज ए सेंटर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी. रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी मतलब ये भी इसके लिए भी जरूरत था. एंड ऑल यंग मेन ओवर 20 हैड टू अंडरगो ए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस. यहाँ पे ऐसा भी नियम था कि 20 साल से जिसको मोर देन 20 इयर्स ओल्ड पीपुल बॉयज they have to bound to join the military service and a military service, a military system, modern military force was also developed during the time. Okay. Then constitutional reforms, the government set up a legal system. means administrative system के बाद जरूरत बहुत जरूरी है constitutional reforms. constitution को कैसा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा एंड इसको रिफॉर्म करके कैसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फर्टाइल करने के लिए फ्रूटफुल करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए. सो द गवर्नमेंट सेट अप ए लीगल सिस्टम टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, control meetings, impose the strict censorship and all these measures invited opposition. Okay, देखो यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, कंट्रोल द मीटिंग्स एंड इम्पोज द स्ट्रिक्ट सेंसरशिप. ये सबको बहुत मतलब सेटअप किया गया था गवर्नमेंट में.
And Japan, the tension between democratic constitution and a modern army had far-reaching consequences. यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न आर्मी, क्योंकि ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डाइमो समुराइज इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म्स करने के लिए जो टेंशन था इसके भीतर में मॉडर्न आर्मी एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर में, इट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक फैला था। बहुत क्या हुआ था देखो यहाँ पे, द आर्मी वांटेड टू कॉन्कर मोर टेरिटरी, देन दिस लेड वार विथ चाइना एंड रसिया। मतलब ये आर्मी जो था जापान में, ये बहुत बहुत सारा टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए चाहता था, एंड चाइना रसिया को भी, मतलब चाइना एंड रसिया के साथ भी यहाँ पे वार हुआ था, एंड बोथ वार ओन बाय जापान। चाइना के साथ हुआ था, रसिया के साथ हुआ था, मतलब वार के लिए भी ये लोग पूरा अपना हुंकार दिए थे, बोलने से बोला होगा। तो बोथ वार ओन बाय जापान, दोनों वार में जापान ही मतलब जीता था, एंड जापान डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड बिकम ए कॉलोनियल पावर। अपना इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप भी हुआ था, एंड यहाँ पे कॉलोनियल पावर भी मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए उसको एक मौका मिला था आफ्टर द टू wars, own the two wars, okay, with China and another is Russia. So students, here is most important chart is here, Meiji reforms। यहाँ पे क्या क्या तुम लोगों को मतलब दिख रहा है, कम से कम ये जो पॉइंट्स जो है, इफ यू विल राइट व्हेन द Meiji reforms question will come, then it will be more benefit for you. First, land redistribution, westernize the school system for the means the वेस्टर्नाइज द स्कूल सिस्टम। यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम को वेस्टर्नाइज किया गया था, बट स्टडी द जापानीज हिस्ट्री, दैट वाज मोस्ट इंपोर्टेंट। मॉडर्नाइज द आर्मी, आर्मी को मॉडर्नाइज किया गया था। बिल्ड ए मॉडर्न नेवी, नेवी मतलब मॉडर्न नेवी को भी बिल्ड किया गया था। एम्परर वर्शिप इंटेंसिफाइड, ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया था। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जर्मन को देख करके ये लोग बहुत मतलब खुद को चेंज किए थे। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भी था, एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, ये सब जो बेनिफिट्स हुआ था। एंड यहाँ पे मेजी रिफॉर्म्स के माध्यम से ये सारा चीज को रिफॉर्म करके, ये जो 8-9 पॉइंट्स जो है ना, यू हैव टू राइट, यू कैन राइट इन योर कॉपी, ओके। देन इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया गया। गवर्नमेंट रेज्ड फंड्स बाय लेविंग द एग्रीकल्चरल टैक्सेस। जापान्स फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम टोक्यो टू योकोहामा वाज बिल्ड इन 1870 टू 72, 70 से मतलब 72 तक, 70 से 72 के भीतर में यहाँ पे पूरा जो फास्ट रेलवे लाइन जो है टोक्यो से योकोहामा तक बिल्ड किया गया था। एंड एग्रीकल्चरल टैक्सेस जो है इसको भी डेवलप करके यहाँ से फंड कलेक्शन रेज किया गया था। इसका मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, जो मशीन्स रिक्वायर्ड होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो यूरोप से लाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। फॉरेन टेक्नीशियंस एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर्स एंड टू टीच यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, मतलब बहुत सारा फॉरेन टेक्निक्स टू ट्रेन वर्कर्स एंड टू टीच यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, ये सब यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स में ये सब चीज को सिखा गया। जापानी स्टूडेंट्स वेर सेंट अब्रॉड, बहुत सारा जापानीज यंग स्टूडेंट्स जो है इन लोगों को सेंट अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री को भेजा गया, एंड वहां से अपना मतलब टेक्नोलॉजी को सीख करके न्यू स्किल, न्यू एजुकेशन सिस्टम को सीख के आएंगे बोल के। ओके, देन मीन्स ये भी मीजी रिफॉर्म्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पैराग्राफ, that is also means remaining parts of this first para. So in 1872 में क्या हुआ था ना, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस were introduced. The government helped companies like Mitsubishi and Sumitomo providing subsidies and tax benefits to become major shipbuilders. So Japanese trade carried through Japanese ships. ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंपनी भी गवर्नमेंट हेल्प किया था, दो कंपनी को, ये जो मित्सुबिशी एंड सुमितोमो को, क्योंकि ना यहाँ पे प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड टैक्स जो है बेनिफिट्स टू बिकम मेजर शिप बिल्डर्स। इसके बाद जापान मतलब सो जापान ट्रेड कैरिड थ्रू जापानीज शिप्स, ये अपना खुद के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया, मतलब दूसरे के ऊपर में करना नहीं पड़ा। देन जय वस्तु
Large business organization, it means the large business organization controlled by individual families. Then they dominated the Japanese economy till Second World War. तो उसके बाद क्या हुआ ना, जापानीज इकोनॉमी में मतलब दे डोमिनेटेड द जापानीज इकोनॉमी टिल द सेकंड वर्ल्ड वॉर. जापानीज इकोनॉमी जो है वो डोमिनेट होकर के था सेकंड वर्ल्ड वॉर तक. एंड पॉपुलेशन उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ सिस्टम किया गया. थ्रू द मीजी रिफॉर्म्स इकोनॉमी को भी मॉडर्नाइज किया गया. आफ्टर दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 मिलियन इन 1872 टू 55 मिलियन इन 1920. मतलब इतने साल के भीतर में that much people means population increased. And to reduce the population, government actively encouraged migration. And इसके बाद population को reduce करने के लिए government migration के लिए भी बहुत encourage किया था. मतलब लोग एक जगह को यदि दूसरे जगह को जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं. Then people migrated first to northern island Hokkaido. It was largely autonomous area where the indigenous people Ainu lived. वहाँ पे Ainu जो है indigenous people जो है वहाँ पे रहते थे. और ये भी एक थोड़ा largely autonomous area था. Then to Hawaii and Brazil, the growing colonial empire of Japan. ये दोनों colonial empire था जापान का. As industries developed, people shifted to towns. Industry develop होने के बाद लोग टाउन को शिफ्ट हो गए थे. 1925, 21% of the population lived in cities, and 1935 this figure had gone up to 32%. Okay. Now इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग जब इंक्रीज हुआ था 7 लाख इन 1870 में, 40 लाख इन 1930 को यहाँ पे डेवलप हुआ था. मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हुआ था. मोस्ट ऑफ द देम वर्किंग इन यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल, नेदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक पावर. एंड ओवर हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वेर वुमेन. वहाँ पे वुमेन बहुत सारे लोगों, मतलब पूरा हाफ जो है ना पॉपुलेशन जो था वर्कर्स का, मतलब रेशियो जो था दैट वाज द वुमेन लेबर्स. ओके. Next, it was women who organized first modern strike in 1866. यहाँ पे फर्स्ट जो स्ट्राइक हुआ था ये भी वुमेन के द्वारा हुआ था 1866 में. एंड इन 1900 नंबर ऑफ मेन बिगन टू इंक्रीज, बट ओनली इन 1930s men outnumber women and the size of the factories enlarged from less than 5 workers to more than 100 workers. अंडरस्टूड. यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ जा रहा होगा मेरे को, क्योंकि ना यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर में दिया हुआ है. Only write the points. There are many important points are there. Then the rapid and unregulated growth of the industry lead to environmental destruction. यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री का रैपिड डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता गया. Then Tanaka Sojo, elected to the first House of Representatives, launched first agitation against industrial pollution in 1897. with 800 villagers in mass protest forcing the government to take action. ओके. यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बना गया था टानाका सोजो ही इलेक्टेड हुए थे वो. एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो 1897 में जो था 800 विलेजर्स इन मास प्रोटेस्ट फेसिंग द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन. इतने सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के मतलब अपना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे टू एक्शन लेने के लिए. देन एग्रेसिव नेशनलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मींस फॉर यू आल्सो you have to know that what is the meaning of aggressive nationalism. So the Meiji Constitution had created a parliament called Diet with limited powers. Meiji Constitution जो है यहाँ पे पार्लियामेंट क्रिएट किया था जिसका मतलब जापान का पार्लियामेंट को अभी भी डाइट बोला जाता है, लेकिन with limited powers. Then those leaders who restored Meiji government controlled powers and they founded political parties and formed ministries. ये जो लीडर्स जो थे जो कि मेजी गवर्नमेंट को रेस्टोर करते थे एंड पावर को कंट्रोल करते थे. एंड दे फाउंडेड पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारा बना गया था. एंड फॉर्म्ड मिनिस्ट्री को भी फॉर्म किया गया था. ग्रेजुअली दे लॉस्ट पावर टू नेशनल यूनिटी एंड कैबिनेट्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू पार्टी लाइंस. ग्रेजुअली दे लॉस्ट पावर टू नेशनल यूनिटी, मतलब यहाँ पे मतलब पावर
मतलब हरा दिए थे, चला गया था, लॉस्ट हो गया था टू नेशनल यूनिटी एंड कैबिनेट। फिर कैबिनेट को फॉर्मेशन किया गया था अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइंस। देखो नेशनलिज्म मतलब जापान को स्ट्रांग बनाने के लिए इसके भी मतलब नेशनलिज्म का फीलिंग्स के साथ साथ बियॉन्ड दैट फीलिंग्स एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड। दैट मींस जापान को स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पे कॉमन पीपुल का एंड पॉलिटिकल पावर का हाथ बहुत है। सो द एम्परर वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड इट वाज इंटरप्रेटेड, एम्परर जो है यह आर्मी का कमांडर थे यहाँ पे, एंड इट वाज इंटरप्रेटेड दैट द आर्मी एंड द नेवी हैड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। Okay, and 1899, the Prime Minister ordered that only military generals and admirals could become ministers. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर किए थे कि मिलिटरी जनरल्स एंड एडमिरल्स could become minister, ये लोग ही मतलब मिनिस्टर बन पाएंगे। एंड मतलब बहुत कुछ स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को भी फॉलो किया गया था यहाँ पे। And all this strengthened the army. The strengthening of army was related with the fear that Japan was at the mercy of the Western powers. Okay? मतलब ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्मी वाज रिलेटेड विद द फियर, यहाँ पे आर्मी जो स्ट्रांग बने थे ये लोग मतलब फियर दैट जापान वाज एट द मर्सी ऑफ, मतलब जापान को वेस्टर्न पावर्स का एक आशीर्वाद था एंड यहाँ पे जापान इसलिए यहाँ पे आर्मी को भी स्ट्रांग बनाया था। सो स्टूडेंट्स टुडे आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हियर। इट इज ए लॉन्ग वीडियो आई नो, बट यू हैव टू watch it patiently and otherwise it will be very difficult for you for writing. Okay, so next period means next video I will send you about the China, means टोटल चाइना के ऊपर में मैं और एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, टोटल चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा इसमें। सो चाइना I will discuss with you next period, it means the next period means next video. So today you have to watch and write all the points. Okay, thank you all of you.